आग बंद करके और उस संदेश को हम सुनते हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपनी आँखें बंद करें, अगर आप कर सकते हैं तो, जब मैं ये प्रेयर गाऊँगी तब। I'll repeat in English. First of all, happy Women's Day to everyone. Through Guruji, we have learned that we should not always think about me. We should get out of that me box and think about hum, we. And when you think about we, your prayers, your power gets double, and you will see the double results. If I would just appreciate if you could close your eyes and listen to my prayer, you could relate our message, Guruji's message. Thank you, everyone. I'll start the prayer. मैं प्रार्थना शुरू करती हूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के हर दिल में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। Thank you. Beautiful. She is Ragini from Atlanta, US, and the beauty of this prayer, whatever are delivering, जो मैं बताता था
उस पर रागिनी जी ने एक बार भी बोला, गुरुजी आज मैं ये गाना गाना चाहती हूँ। तो वॉट एवर वी आर ऑफरिंग एज ए नॉलेज या एनीवन, उस नॉलेज को पिरोना और उसको गीत के रूप में देना, दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। रागिनी, वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच, ब्लेसिंग्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट कोर्स, हम सब इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इस प्लेटफॉर्म में हो सकता है कुछ नए लोग भी हों, मन में प्रश्न होगा, कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, काय का है, कहीं डोनेशन वोनेशन आखिरी में मांगने नहीं लगे, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। तो व्हाट myself Krishna Mishra, people know me as a Krishna Guruji, but my intention you come to know from the prayer of Ragini कि हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं। Somebody asked me what is the meaning of life, I say along with your moderation worries, if you are able to think for someone else, it's a meaning of life। आप अपनी परेशानियां, तनाव और दुखों के साथ साथ किसी और की परेशानियों पर कैसे नजर डाल सकते हैं, यही मूल जीवन है। नाउ मैं, अब मेरे गेस्ट लोग भी आ चुके हैं, तो बिफोर स्टार्ट अ कोर्स आई रिक्वेस्ट टू तितिन इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट। Pranam Guruji, Pranam सभी को, very warm and good evening to everyone, a very warm welcome. So DH is a process that Krishna Guruji had found under the divine's grace and blessings. It is a very simple concept, how each individual can connect the outer world with their inner world. So let me break the DAH. D is the divine. The divine was given in DAH because of the divine's instructions and blessings. Guruji started this journey of healing. Astro, which defines all the 9 planets, are connected with our daily lives. The planets' impact on the quality of life, which is proven by science. So, in this DAH, Guruji teaches us having faith in ourselves is creating awareness on your own power. He teaches us, rather than asking help from outside or others, discover the divine power inside you. Tap into that power and be your own healer. Do not rely on outside sources and seek blessings, healings from outside, because you can bless yourself, you can heal yourself. With the process of divine astro healing, what we are seeking from outside, we are able to achieve all of those for ourselves by ourselves, because we shape our fortune and destiny. The world does not shape it for us. Thank you so much for giving me this opportunity, Guruji. Blessings, blessings, blessings. Thank you. So now I am coming on the main function. Everybody know that today is the International Women Day. It has been started in 1910 with an intention of few women joined together along with one theme, and till now 8th March is celebrating as a International Women Day along with one theme. And today's, what is this year theme? Anybody can help me? Very good. Yamini ji, blessings. Please unmute yourself. So break the bias. Break the Bias. bias. And this particular, this 202022, any theme they had declared by the UNO? It is a register on the heading. दिशा जी आप बता दें। नमस्ते गुरुजी, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? हाँ जी, एवरीबॉडी नमस्ते गुरुजी। So what is the theme? Theme दिशा जी हम बता रहे हैं आपसे कि थीम क्या है सर? थीम इक्वालिटी ऑफ जेंडर है। इक्वलिटी ऑफ जेंडर है, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर। जी, मैं आपको सबसे पहले दिशा जी से बाद में मिलवाऊंगा कि दिशा जी एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने एक वुमन के रूप में, एक लड़की के रूप में
समाज के हर दायरे को क्रॉस करते हुए उच्च स्थान प्राप्त किया। थैंक यू दिशा जी। नाउ इस इक्वलिटी ऑफ जेंडर, मन में अलग अलग प्रश्न उठ रहे होंगे आपके। लिंगों की समानता, स्थायी भविष्य का, आज जो वर्तमान में वुमेन्स का रोल है, आई अप्रिशिएट कि वुमेन्स के कारण ही आज जो कुछ इन्वेंशन हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, डिश वॉश का इन्वेंशन हुआ, सीसीटीवी का इन्वेंशन हुआ, सीरीज का इन्वेंशन हुआ, ये सब कंप्यूटर में लेथरम लैंग्वेज का हुआ, ये ऑल हैड डन बाय वुमेन। बट आज हमारा समाज जहां पर खड़ा है, आज से हम कहां लेकर जाना, इस पर हम चिंतन के लिए बैठे। और हमारे साथ में 4 बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं। फर्स्ट, दिशा सचदेव, शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस एंड रिसेंटली वन, you must be seen the one serial is Maharani in the GTV Live. She played a role of Sita, and overall her name is enough. You can Google and you can check it. I don't want to say more and more, but overall she is a very lovely girl, very intelligent, very devotee, and she is a life coach. Second, we have one Sanjana ji. She is a cross gender, but equality of gender में मैं संजना जी का परिचय करा रहा हूं। संजना जी हैं, एंड जस्ट आई वुड लाइक टू, शी इज अ क्रॉस जेंडर बट शी क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज। वह एक किन्नर के रूप में है, लेकिन आज किन्नर समाज के लिए उन्होंने इतना करा। भोपाल में सोशल जस्टिस में जो सरकार का विभाग है उसमें कार्यरत है, और अपने अपने अकेले के दम पर, सहयोग के दम पर, ब्लेसिंग के दम पर इन्होंने एक ऐसा स्थान पाया कि आज किन्नरों के लिए, वर्ग के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। आधार कार्ड की व्यवस्था करवाना है, और इवन आज ट्रांसजेंडर को वह मेल और फीमेल रेजुअलाइजेशन में भी करते हैं, तो ट्रांसजेंडर आने लगा। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ जेंडर की बात है, तो आज हमारे बीच में संजना जी भी हैं, जिनसे हम सुनेंगे कि कितनी आपने विषमता लेकर। देखिए, सफलता पे ताली बजाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन वह सफलता तक इंसान कैसे पहुंचा, इसके लिए हम जानते हैं। नमिता दुबे जी हैं हमारे बीच में। नमिता जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। नमिता जी, शी बॉर्न प्रॉब्लम है द पोलियो, शी व्हील चेयर पर चलती हैं, बट अपने जज्बे में मैंने कभी इनकी व्हील चेयर नहीं देखी। जज्बे में मैंने इनके वो कभी नहीं देखा। वॉकर जो कभी चलती लेकर, वो जज्बे में नहीं देखा। एक ऐसा कमिटमेंट अपने साथ किया कि उसको वीन अप करके, मेरे ख्याल से भारती जी और वर्षा जी यहाँ पर है, वो इनसे मिल चुकी होंगी। उन्होंने एजुकेशन फील्ड में अपना 100% दिया, एंड शी इज बिकम ए गुड नंबर 1 गवर्नमेंट टीचर है। और साथ ही साथ कुछ ये कोविड टाइम में कुछ टीचर्स को लेकर एक छोटी सी तेजस्वी तुलिका संस्था बनाकर, जो विकलांग लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, झुग्गी बस्ती है, वहां पर जाके अध्ययन करवानी। हम इनकी बात इनके मुख से ही सुनेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आज हम भले ताली बजा लें, लेकिन इस ताली के पीछे जो दर्द छुपा है यहां तक लाने में, वो विषमता कैसे झेली और एक वुमन को चरितार्थ कैसे किया, और ये साबित कर दिया कि शक्ति सिर्फ एक के पास है, जिसको नवरात्रि में 9 शक्तियां होती है, एक एक शक्ति हर वुमन्स के पास है, बस उस शक्ति का एहसास करना मेन कॉज है। फोर्थ, बिस्लिना जी, Vesna Anastasia, she is from Jari. She is totally devoted to the spiritual and Lord Krishna. Just we want to know from her. Just give a clap for her. We want to know from her. Thank you. How we are. Even I am also not too much devoted. Oh my God! How she is her journey to attach with the Lord Krishna and detach from all moderation and worries. Okay. Thank you, Guruji. Okay, blessing. We are all just starting. We are all just new. At least me, I'm just a neophyte on this path of devotion. Okay, blessing. Just we would like to listen. Now, first, I invited Namita Dubey ji. Namita Dubey ji, kahan hai? हाँ, Namita ji. Today's topic, which we had given all, सबको हमने बता रखा है इनको कि what is the theme of this year and how many, what your struggle जो भी आपका है, उसमें मेन अदर जेंडर्स आपके लिए कितने यूजफुल है। हमने 5-5, 7-7 मिनट का टाइम बांट के रखा है। आइए हम अपनी विषमताओं को, अपनी दिव्यांगता को सकलांगता में बदलने वाली
और विषमता को समता में बदलने वाली इस नमिता दुबे का ताली बजाकर हम आज स्वागत करते हैं और हम प्रणाम करते हैं आपके जज्बे को। रियली हम आपकी जगह कोई आपको देखे तो आंखों में आंसू तो आ जाए, लेकिन आपकी वाणी सुनकर एक जज्बा आता कि नहीं, ईश्वर अगर आपसे कोई चीज लेता है तो उसके अगेंस्ट में बहुत कुछ देता है, इसका एहसास करना काफी है। नमिता जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, प्रणाम गुरुजी और मेरे सभी साथियों को भी प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महिला दिवस के ऊपर आप लोगों से मिल रही हूँ। मेरी सभी साथी महिलाओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और साथ में आज जो मुझे दो टॉपिक दिए थे, दो क्वेश्चन दिए थे कि आप इस साल की थीम पर आपकी क्या व्यू है। तो मेरा ये सोचना है कि इक्वलिटी ऑफ जेंडर में हम शुरू से देखते आए हैं कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जब बच्ची पैदा होती थी तो प्रॉब्लम होती थी और भेदभाव होता था, और वो चीज कहीं ना कहीं हमारे ब्लड तक अभी तक भी आ रही है। आज जब महिलाएं इतनी प्रगति कर चुकी हूँ, इतने आगे बढ़ चुकी हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ में हम ही महिलाएं होकर के ही हम कहीं ना कहीं उस चीज को आगे कहीं थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं। और हम कहते हैं कि हम बराबर हैं, हम सारी मतलब लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लड़की को कहते हैं कि बेटा अच्छे से बोलो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, ज्यादा शाम तक बाहर नहीं घूमो, या सो मेनी इंस्ट्रक्शन कि उनके लिए ये है कि आपको लड़की है इसलिए आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेंगे। लेकिन बॉयज के लिए अरे वो लड़का है करके हम छोड़ देते हैं। ये चीजों को यदि आज हमने नहीं संभाला, क्योंकि मेरे नजर में सिर्फ महिला ही एक ऐसी हस्ती है इस सृष्टि में जो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। हमारा काम रचनात्मक होना चाहिए और हम उस सृष्टि को बनाने में पूरा वजूद हमारा उसी में ही लगना चाहिए। हम लड़कों को भी वो चीज समझाएं कि तुम्हें महिलाओं की इज्जत करना है, तुम्हें महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो आज बहुत सारे केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केस होते हैं या दूसरे केस होते हैं जो एक दिल को दहलाने वाले होते हैं, वो ये तभी होते हैं क्योंकि हम उनको लड़का समझ करके छोड़ देते हैं और लड़की के लिए हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शन रख देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपके दिमाग में सबसे पहले इस जेंडर की इक्वलिटी को बराबर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक सोच करके आगे बढ़ना होगा। और यदि हमने इसमें पहल नहीं की तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है, इतनी जगह। कल हमने जो अभी कुछ महिलाओं का जो सम्मान किया, तो हमने देखा कि महिलाएं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं छूटी हैं। यदि वो कचरा गाड़ी ढोने का काम कर रही हैं तो वो आकाश में भी गई हैं, चंद्रमा पर भी गई हैं। तो अर्श से फर्श से अर्श तक उन्होंने अपने रास्ते को बनाया है। और उसमें यदि हमारा सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि हम महिलाएं हैं, तो हमें इसमें सहायक बनना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर में भी हमारे ही ऊपर जिम्मेदारी आएगी और हमारे साथ में पुरुष का कंधा होना बहुत जरूरी है। मैं नारी शक्ति का समर्थन उसी के साथ करती हूँ कि नारी एक अनुशासित होना चाहिए और उसमें पुरुष का सामंजस्य हो। नारी हमेशा स्वतंत्र रही है और उसकी शक्ति को वो शक्ति तभी कहलाती है जब पुरुष के साथ उसका सामंजस्य होगा। उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है मेरे अनुसार। दूसरा क्वेश्चन मुझे जो दिया गया था वो था कि आपको इस स्थान पर पहुंचने में क्या क्या किसी जेंडर का सपोर्ट मिला है या हर्डल मिला है। तो मैं ये कहूंगी
मुझे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ था और उसके बाद में मैं पोलियो के साथ बड़ी होती गई। जब थोड़ा-सा समझ में आया तो मेरे फादर ने एक हिदायत दी थी। शायद उस समय वो ठीक नहीं लगी होगी मेरे को, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पैर में पोलियो है और तुम सुंदर भी तो हो सकता है तुम्हारे जीवन में कई लोग तुम्हारे ऊपर दया करें और तुम्हारे सहयोग के लिए साथ आएँगे। लेकिन यदि तुमने उस साथ को, उस मदद को, उस सहयोग को अपनी आदत बना लिया, तो थोड़े ही दिन में वो तुमसे मुँह मोड़ लेंगे और तुम अकेली पड़ जाओगी। वो बात मेरे सामने मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि मैंने कभी भी ये नहीं चाहा। उन्होंने ये भी एक बात कही थी कि हमेशा मदद लो नहीं, देना सीखो। और उसके बाद में मैं ये अपना अस्तित्व बनाने के लिए मेरे दिमाग में यही रहा है कि मैं कहीं किसी भी तरह से किसी के काम आ सकूं। 2000 आज से 30 साल पहले जब हमारी सर्विस लगी थी, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ में पूरे साउथ टूर पर 1 महीने के लिए गई थी। कंटिन्यू हम ट्रेन में घूमे हैं, कंटिन्यू हमने वेलांगनी और कोडाईकनाल और कोयम्बटूर और ऊटी और मद्रास, हैदराबाद ढेर सारे करीबन 25-30 प्लेस हम घूमे हैं 1 महीने तक। और मेरे साथ प्रॉब्लम कम नहीं थी, लेकिन उसका साथ और साथ में मेरे मदर फादर का साथ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी। ये घूमना केवल घूमना नहीं होता है, ये जीवन के कई चीज़ों को, कई पहलुओं को सिखाने के लिए उपयोगी होता है और ये चीज़ मुझे मेरे मदर फादर की तरफ से मिली। उसके बाद हम ऐसे बड़े होते गए। धीरे-धीरे जब मैच्योरिटी आई, तब कुछ करने के लिए लगा। साथ में 2015 में मुझे कैंसर हो गया। 3rd स्टेज कैंसर हुआ। मेरे इस बीमारी के कारण मुझे मेरे ब्रदर ने पूरा सहयोग दिया और वो जब आकर के और उनका सशक्त कंधा मेरे साथ रहा, तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई। उस समय शायद मैं टूट जाती, लेकिन जब परिवार का और अपने रिश्तेदारों का और अपने फ्रेंड्स का जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, तो व्यक्ति बहुत कुछ करने की उमंग में ये लगता है कि अब हमें कुछ बहुत सारा कुछ करना है। मैंने भी यही सोच करके कि अब मुझे यदि दूसरा जीवन मिला है, तो मुझे अब इन लोगों के लिए करना है। और यही सोच के साथ हम मैंने पहले तो हम बस्ती में जाते थे और महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ाते थे, लेकिन धीरे-धीरे कहते हैं कि एक सोच की लोग मिलते जाते हैं और कारवां बढ़ता जाता है। हमारा भी ऐसे ही कारवां बढ़ता गया और हमने ऐसी ही एक संस्था बनाई और उसमें हम पूरी तरह से हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के लिए उनको संस्कारित करें। पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो पढ़ना सीखते हैं स्कूल में जाकर के। यदि हम भी पढ़ने के पीछे बैठ जाएँगे, तो वो हमसे भाग जाएँगे। हमें उन्हें संस्कार देना है, हमें उन्हें पर्यावरण के बारे में बताना है, योग के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें जो कि कहीं लुप्त हो रही हैं। आज के इस भागदौड़ की दुनिया में जो हम छोड़ते जा रहे हैं और सिर्फ हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, उसके लिए हमारा ये उद्देश्य तेजस्वी तुलिका का यह उद्देश्य रहा है कि हम इस पर कॉन्संट्रेट करें और हम नई पीढ़ी को ये सब बताएँ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम समानता से बच्चों को इसमें आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी कुछ हम इसमें सफलता हासिल करते जा रहे हैं। तो आज मेरा यही अंत में कहना रहेगा कि जेंडर हमेशा मददगार होते हैं, लेकिन कोई भी जेंडर हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने लिए मददगार होना पड़ेगा। आप स्वयं अपने आप से प्यार करिए, दुनिया आपके साथ होती है। यही मैंने जीवन से सीखा है और यही मैं चाहती हूँ कि यही मेरे साथ जाए। धन्यवाद। Very beautifully explained. Namita ji just would like to share her brother is my college friend and I used to see from 1984 to her. मैं 81-82 से मैं नमिता को मैंने देखा है और उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले देखा
वो ट्रांसफॉर्मेशन उस समय का, इस समय का, जिसमें वाकई देखकर अपने को दया आती थी और मित्र की बहनें और दया आती थी। लेकिन वो दया एपेथी का बेगर बनने की बजाय इसने अपने विल पावर को यूज करा और आज अपने आप को उस आयाम पे खड़ा करा कि अपने साथ साथ दूसरों की मदद करे। साथियों, धन्यवाद नमिता जी अगेन। अब हम आते हैं दूसरे दौर में। अभी तक मेल फीमेल की बात चलती थी, एक तीसरा जेंडर और निकल के आया जैसे कि ट्रांसजेंडर। और मेरा मानना है हमेशा हमने उपेक्षित रखा, मैं समाज की तरफ से बोल रहा हूं, उपेक्षित रखा उस समाज को। केवल हमने ये मान के चला कि भाई बच्चा आएगा, आशीर्वाद ले लो, बच्चे का अच्छा होगा, उसका पैसे दे दो, कुछ कोई शादी हुई तो आशीर्वाद आएगा। डर मन में रहता था, आशीर्वाद की फीलिंग बहुत कम रहती थी, कहीं ज्यादा पैसे नहीं मांग ले। ये मैं आपको यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। लेकिन वह बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एक साथ हाथ चाहिए था, कोई ना कोई आवाज चाहिए थी। वह आवाज बनी संजना राजपूत, जिसने वाकई अपने दम पर किन्नरों के अपडेशन के लिए जो कार्य किया वो वाकई सराहनीय है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन आज जो इक्विटी ऑफ जेंडर है उसमें मैं ट्रांसजेंडर को भी समान जेंडर के रूप से महिला पुरुष जैसा आमंत्रित करता हूं आज, और आकर बताएं कि आपने इतनी विषमताओं, इतनी इग्नोर के बाद अपने आप को कैसे स्थापित किया। जोरदार तालियां बजाएं संजना राजपूत जी के लिए। संजना जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। नमस्कार, जय श्री महाकाल गुरु जी। आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही जी, प्रणाम आपको सादर। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले कि आपने मुझे एक ऐसा मंच दिया कि जहाँ पर इस विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज शायद पहली बार ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है, या पहली बार ऐसे मैं मंच पे आई हूँ जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को लेके आपने एक बड़ी अच्छी पहल की है। और हमारा थीम भी यही है कि जेंडर इक्वालिटी। तो मेरे ख्याल से इस बार का जो विश्व महिला दिवस आपके माध्यम से एक भविष्य में इतिहास रचेगा कि हम जैसों के लिए भी कोई सोच रहा है और हमारे लिए भी कोई आगे आ रहा है। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद गुरुजी कि आप जैसे लोग हैं दुनिया में। कहते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना है, बाकी तो ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो हम कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि संक्षेप में मैं थोड़ा सा बता सकूं क्या जो रहा है हमारे साथ में। कि अभी बात हो रही थी, मैं सुन रही थी कि महिलाओं को लेके भी काफी उनको दंश, उनको वेदना झेलना पड़ती है। लेकिन हम लोगों के साथ में थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि शायद एक बार अगर लड़की भी होती है किसी के यहाँ पे तो उसको आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अगर कोई डिसेबल पर्सन बच्चा होता है तो उसको भी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन बात जब किन्नर की आती है तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो विकलांग हो या ना हो, या फिर वो कैसे भी हो। लेकिन एक जो समाज की रूढ़िवादी सोच है कि जो मन से विकलांगता इस समाज में है, उसके अगर देखा जाए तो आज उसकी बदौलत हम जैसे किन्नर समाज के जो लोग हैं वो एक अपने अलग ही दुनिया में, अपने संसार में रह रहे हैं। बिल्कुल इस दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस हम बधाइयों में जाना, हमें नाचना गाना, लोगों का मनोरंजन करना, लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन के अपना जीवन व्यतीत करते रहे हैं। लेकिन शायद एक ईश्वर का ही ये एक वरदान है जो रामचरितमानस में भी वर्णन है कि कलयुग में एक बार सृष्टि में किन्नर साम्राज्य होना है। तो शायद मेरे ख्याल से वो चरितार्थ हो रहा है। तो बात सम्मान की आती है, जब हम जो प्रकृति का नियम है कि जो हम प्रकृति हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। और मेरे ख्याल से आज ये देखने को मिल रहा है वर्तमान स्थिति में कि हमारे किन्नर वर्ग से काफी लोग जो हैं सामाजिक क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। योगदान देने के साथ में उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से भी काफी पहल की जा रही है। जैसे कि हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के सामाजिक न्याय विभाग और उनके भारत सरकार के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक तथ्य लिंग पहचान के स्वरूप में हम लोगों को पहचान दी गई है देश में। और जिसमें हम लोगों को आधार कार्ड, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी जो हमारा सर्टिफिकेट है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो, ट्रांसजेंडर आई कार्ड हो,
ये हमें मुहैया कराए जा रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश में अभी हमारे काफी साथियों को मिल चुका है। और देश में पहला ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और पहचान पत्र मुझे प्राप्त होने का गौरव भी मिला है। तो ये शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है अपने आप को समाज के बीच स्थापित करने का, और एक अच्छी छवि लोगों के बीच में लाने का, कि कहीं ना कहीं जो लोगों की मानसिकता है हमारे लिए कि किन्नर सिर्फ नाचने गाने तक सीमित रहते हैं, या किन्नर लोग सिर्फ गंदा बोलते हैं, ताली बजाते हैं, नंगे हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस तरह की जो लोगों की मानसिकता है, तो मेरा मानना है कि शायद इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण वो चाहे स्त्री हो तो स्त्री में भी देखने को मिलता है, कई पुरुषों में भी देखने को मिलता है। लेकिन हम किसी एक किन्नर के गलत आचरण से सारे समुचित किन्नर समुदाय को गलत नहीं कह सकते। जैसे कि कोई अगर एक स्त्री गलत है तो सारी स्त्रियों का समाज गलत नहीं हो सकता है, वैसे ही पुरुष था तो वैसे ही किन्नर का भी। आज जो पहल की है गुरु जी ने, और इससे पहले भी कई तरह का जो है गुरु जी ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे, मेरा मार्गदर्शन करा है, और पल करते रहते हैं। ये शायद इस लायक या इस योग्य बनाने की एक इनकी पहल है कि हमारे समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने का बड़ा जबरदस्त प्रयास गुरु जी कर रहे हैं, और वो सफलता की ओर अग्रसर भी है, बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें सबको मिलकर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, हम तीनों ही वर्ग को अगर इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है या समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो स्त्री पुरुष किन्नर तीनों को ही मिलकर करना होगा। क्योंकि हम किन्नरों का वर्णन वेदों में, पुराणों में भी मिलता है, हमको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो आज हम लोगों को इतना दंश झेलना पड़ता है कि जिस माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं, उसी परिवार से हमें अलग होना पड़ता है, अपनी एक अलग दुनिया में जीना पड़ता है, और अपनी एक भेदभाव से भी और ज्यादा गहरा जो हमारे साथ दंश होता है कि बिल्कुल हमारा अस्तित्व ही नहीं माना जाता इस समाज में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक, अगर देखा जाए सदियों से हम लोगों के लिए एक अभिशाप वाला जीवन रहा है जो हम जी रहे थे। लेकिन अभी कुछ समय के बाद समाज ने हमें स्वीकार करना शुरू किया है। आज हमारे समाज से कई लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी जगह पे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं। और क्यों ना हो, जब आप जैसे लोग हमें स्वीकार करते रहेंगे और आप जैसे लोग जब हमें मौका देंगे अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने का, समाज की मुख्य धारा में आने का, तो हम बेहतर से बेहतर अपने आप को, अपनी छवि को आप लोगों के बीच में स्थापित कर साबित करके दिखाएंगे कि अगर हमें मौका मिलता है हमें किसी भी कार्य को करने का, तो बिल्कुल हम साबित करेंगे कि हम किसी भी स्त्री या पुरुष से कम नहीं है। और वैसे भी किसी को भी आप कोई विकलांग है तो विकलांगता को आधार पर उसको आप कम नहीं आंक सकते। तो मेरा यही कहना है कि हर एक जो कमजोर इंसान होता है उसमें भी एक कुछ ताकत होती है। ईश्वर ने बेशक हमें एक ऐसी योनि में जन्म दिया है जो शायद स्त्री ना होकर, पुरुष ना होकर, दोनों ही गुणों से भरपूर है, श्री जो अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कलयुग में अगर देखा जाए तो किन्नरों के अंदर वो दोनों तत्व मौजूद हैं, वो दोनों ही एक साथ गुण हैं जो शायद एक स्त्री अलग और पुरुष से अलग देखे जाते हैं। तो ईश्वर का हमारे लिए ये वरदान है कि हम दोनों ही तत्वों से नवाजे गए हैं, और इस सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। और आज जो समाज वर्षों से हम लोगों को अलग थलग मानता था, या हम लोगों के साथ में जो भेदभाव करता रहा है, आज वो समाज हमें स्वीकार कर रहा है। और ये शायद विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज इसके अंतर्गत मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है कि आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक उचित स्थान गुरु जी के माध्यम से मिला है। और इसी के साथ में अपना बस यहाँ पे बात खत्म करूंगी, और सभी बहनों को विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में बधाई और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि हमें सोच बदलना होगी तो हमारे सितारे बदल जाए ना। तो सभी को पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद। संजना जी, you represent one planet, एक मरक्यूरी प्लैनेट को आपका आशीर्वाद काम करता है। अगर किसी तबीयत खराब हो कभी हो तो इनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज गॉड ऑलमाइटी ब्लेस देम। और जिस प्रकार आपने कहा ऑल फिंगर नॉट सेम, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, इसलिए आप ये भी मान के चलें हर व्यक्ति तिरस्कृत नहीं करता,
लाखों करोड़ों लोगों के मन में आप लोगों के प्रति इज्जत है, और जब भी बच्चा होता है तो आपका आशीर्वाद दिलाए बगैर वह बच्चे की यात्रा पूर्ण नहीं मानते। मैं मानता हूं कुछ वर्ग ऐसा है, लेकिन उस वर्ग को मेरा पूरा विश्वास है आप और आपका जज्बा और हमारी शुभकामना दूर करेगी, और आप भी जिस प्रकार पुरुष महिला एक साथ मिलकर समाज के में, आप भी एक समाज के उत्थान के लिए आपका वर्ग भी काम करेगा। आप ऑलरेडी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, अपना मार्गदर्शन दे रही हैं और इनके अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं पूरे परिवार के सहित, और धन्यवाद आपके। नाउ आवर अनदर गेस्ट। गुरु जी, बस एक छोटी सी बात हाँ, बोलना बोल चाहूंगी। बेटा, बोल। जी बोल। बिल्कुल, मतलब आज शायद अगर यहाँ तक हूँ मैं, आज जिस पोजीशन पे हूँ या जिस जगह पर आज हूँ मैं, तो वो शायद आप जैसे लोग भी हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो शायद कुछ नकारात्मक लोगों ने हम लोगों को भले ही अनदेखा किया है, लेकिन आप जैसे सकारात्मक सोच वाले, सकारात्मक नजरिए वाले लोगों ने हमें स्वीकार किया है, दिल से किया है, तभी आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और शायद आप लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में मुझे सपोर्ट करते हैं और किया भी है। तो बिल्कुल, और ये सहयोग और ये स्नेह जो है हम लोगों के लिए आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में बदलाव चाहिए तो हमें आपका सपोर्ट और आपका स्नेह बराबर चाहिए, जो अभी बना है वो भविष्य में भी आशा करती हूँ कि ऐसे ही निरंतर प्राप्त होता बराबर है। रहेगा। Now, due to COVID, just I want to take 2 minutes. Due to COVID time, everybody was in the fear mode, and the International Yoga Day come now. So only we can perform online. So what I did, all the cross gender from the different city, I collect them. I took the yoga session with them and asked them, please. Normally, you are everybody thinking about you when your society is happy. घर में बच्चा होता, शादी होती। आज इस दुख के पल में हमारा समाज आपसे आशीर्वाद मांग रहा है कि कोविड फ्री करें, और मेरे को इतना सपोर्ट मिला। जितने 10-12 शहर के किन्नर्स आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आज उसके कारण भी हम कोविड में चलो थोड़ा नाफा नुकसान हुआ, आज वो योग भी किया, और आज भी संजना जी का उसमें बहुत सहयोग रहा। और धन्यवाद संजना जी अगेन, अपनी वाणी को आगे ले जाते हुए एक और नए दिशा जी तक लाऊं आपको। एक और नए गेस्ट से आपको मिलना चाहता हूं, वेस्ना जी। एंड शी इज आई जस्ट नो अबाउट, मे बी बासु जी इज हियर। बासु जी, बासु जी। Yes, Guruji. Just say about her, please. She is from Nixic, Montenegro. She is a very devoted. She is very devoted towards Krishna. Her all life is all about Krishna's Vrindavan, and she has written a book on Krishna also. So what I know about her, that I haven't seen. I have seen many devotees in India, but I haven't seen this kind of devoted kind of woman from any different land. Like, I do not want to say the foreign land. Every land is the same, but she is something different. So that is all about I know, Guruji. Very good. Now I invite Vesna ji, come forward, mute yourself, and just let us know International Women Day. Thank you so much. I'm just today I'm just now today in the Baby City Mall. My brother, this is my nephew. I didn't tell me. But I was thinking what to say. What to say? It's okay. It's okay. Okay, so I have one thing that I was thinking about, like about genders and stuff. It's like in this world nowadays, being a woman, or not only nowadays, but since long time, is really actually very difficult, and it's very everything is kind of made to destroy our femininity, and that's like what is my impression, because woman has to fight and through their life, and for everything. So it's really not such a great thing to be a woman in this world, but to be a woman is really nice, and I love I like my body in that sense, because Krishna in Bhagavad Gita said that he is actually among women, he is a fame, he is a fortune, a fine speech,
memory, intelligence, steadfastness, and patience. So these, when I think about these things, how actually far still I am from these beautiful things that actually are femininity. So this is what is my like my own meditation, and probably I would like to kind of call every one of us to think more about how to become more feminine inside, no matter if we are male or female, because everyone has a male and female side in oneself, anima and animus. So it's like this cultivation of these inner beautiful qualities of a female is really very, very important. And that is what actually brings the beauty in the person, what brings us closer to God as well. So I would just point these things. This is for me like something that I really try and to manifest in my life. With the grace of all of you and all of people that I am interacting with, to always be in that balance inside of my feminine and masculine side, to function properly in this world. So this is like what I was thinking would be something to maybe point more. Do we really are we also patient always? Are we always in a fine speech? Do we really speak finely? Are we, in a good memories? Are we intelligent enough? So all these beautiful qualities. Do we have this fortune, this fame and fortune being as such persons? So most of us don't. So this is something that we really lack in this world nowadays. It's such a harsh world, and somehow the world is pushing us to be, to be not so fine and not so. But we have to keep cultivating our inner self to really be in this balance, this perfection of being feminine. But proper femininity, that's it's not so much outside. It's not so much do we have like mini skirt or long hair or whatever, or makeup. I don't think that is something that makes that's so much what makes a woman. I think these inner qualities are something that really count. So this is maybe what the world is not stressing so much. It's always more about men and women, and of course these relationships which are very, very difficult, but and I understand them, but I think one has to try to start from oneself, and when we are inside very fine and very delicate and very beautiful, then this we will bring to outside, and then people around us will also benefit from it. So this is something that I think is our duty and our something that Krishna is pointing in Bhagavad Gita as well. So this was my contribution. Just two line of the bhajan, Krishna's bhajan. Two line of the. Oh my God. Just see our. Wait, I will just bring my two, 3 lines. Because from foreign language, the Krishna's name, हम तो बोलते थे गोपी कृष्ण माधव मोट नितिन मुगा, पर उनके मुख से कैसा लगता है? Just 2 minutes, just simple 2 lines, please, Vesna. Very good. I just have to, because I was not practicing. I was like having a lot of work and traveling around, so I was like my voice and everything is a little bit. Well, but at least something I could do for Krishna and also for Shiva. Just the 2 lines. It's my guitar is not even tuned properly, so I can't do it. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Because it was Shivaratri just recently. And then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Thank you very much, Rajni. Thank you very much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Blessing, blessing, blessing. Now, everybody want to listen our Kisa Disha ji, and really, she is so hard, committed. Where are you, Disha? Welcome you from our Divine Astro Healing family. And Disha ji के बारे में आपको क्या बताऊं? You just Google it. What type of role she is doing, and she is well known. And the current serial also चल रही है. उसके अलावा एक लड़की भी है और एक जज्बा लेकर भी साथ में चलती हैं. स्वागत है आपका दिशा जी. अनम्यूट कर ले अपने को. जी नमस्ते गुरुजी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है. सब लोगों को बता. जी गुरुजी, पहली बात तो थैंक यू सो मच कि मुझे आपने इतना बड़ा ऑनर दिया, एक स्टेज प्रोवाइड किया यहाँ पे अपने विचार बोलने के लिए. एंड थैंक यू एवरीवन. आप सबकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, स्पेशली नमिता जी की और संजना जी की बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने अपनी जो वीकनेस है उसे ही अपनी पावर बना रखा है. और सबसे बड़ी बात तो वही है कि शायद शरीर की कोई डिसेबिलिटी हो या फिर जैसे कि किन्नर को माना जाता है कि इस समाज में कि एक टैबू माना जाता है, आप लोग उस चीज से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी उन चीजों को अपनी शक्ति बना रहे हैं. तो मतलब रियली माय हैट्स ऑफ एंड माय सलाम टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच, बिकॉज आप ही की तरीके के जो लोग हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेके जा रहे हैं. और दूसरी गुरुजी, जो हमारा आज का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी. जेंडर क्या होता है? मतलब मेरे अपने विचार ये है कि जेंडर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्सन के, चाहे उसे उन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेल बोल देते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर बोल देते हैं, या फीमेल बोल देते हैं, फेमिनिन जेंडर बोल देते हैं. जिसमें मैं यहाँ पे ना एनर्जी की बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक एनर्जी वर्कर हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक रेकी हीलर हूँ. तो मेरा मानना है कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसने हमें दो तरीके की एनर्जीज दी है. एक फेमिनिन फीमेल की एनर्जी जिसे हम शक्ति बोलते हैं, और एक मैस्कुलिन एनर्जी जिसे हम शिवा बोलते हैं. तो इस एनर्जी की, दोनों ही एनर्जी की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं. एक फीमेल एनर्जी की जो खूबियां हैं वो है इंट्यूशन, वो है पावर, वो है केयर, नर्चरेंस, जिसके बिना मुझे नहीं लगता ये दुनिया आगे भी जा पाएगी. और जो मेल, जो शिवा एनर्जी है, उसकी कुछ अपनी खूबियां हैं जो कि है लॉजिक, जो है हार्ड वर्क, करेज, लड़ना, आगे जाना, एक्शन करना. तो वो भी जरूरी है. और यूनिवर्स में ना हर एक चीज का क्रिएशन कैसे होता है? दोनों एनर्जीज जब मिल जाती है, शिव और शक्ति के मिलाप से ही तो ये दुनिया बनती है. तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि शिव अच्छा है या शक्ति अच्छी है, मर्द अच्छे हैं या औरतें अच्छी हैं, या एक फीमेल अच्छी है या एक मेल अच्छा है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, हमें इन दोनों शक्तियों को, इन दोनों एनर्जीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. कोई कम या ज्यादा है ही नहीं, दोनों इक्वल है. और अभी तक मुझे जहां तक पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फीमेल एनर्जी है ना, जो शक्ति है, वो मेल से भी ज्यादा अच्छी है या पावरफुल है. क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप इंट्यूशन में नहीं जाएंगे, आप उस शक्ति के पास नहीं आएंगे. वो फीमेल की जो शक्ति है, जो दुर्गा की शक्ति है, जो वो शक्ति है, वही तो उस मर्द को या फिर उस शिवा को एनर्जी देती है आगे जाने की. तो हम उसकी ताकत देख लेते हैं, लेकिन शक्ति ना चुप करके पीछे बैठती है. ताकत जो है शिवा को, वो शक्ति ही देती है. तो अगर शक्ति नहीं है तो शिवा कैसे अपनी ताकत करेगा? शिवा को जो डायरेक्शन दे रही है वो शक्ति है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है. तो हमें इस सारे डिस्क्रिमिनेशन से हटना चाहिए. और आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, शायद हम अगर एक बात समझ लें और आगे जाके एक एक इंसान को जिससे भी हम मिले, बस हम अपनी विचारों में हम डिस्क्रिमिनेट करें ही ना. जब यूनिवर्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, हमें शिव और शक्ति दोनों दिए हैं, तो हम कौन है ये सोचने वाले कि हम बेहतर हैं या वो गंदे हैं, है ना? हम, आप में कुछ चीजें हैं जो आपकी अच्छी हैं, मेरे में कुछ चीजें हैं जो मुझ में अच्छी हैं. हम दोनों मिलके एक अच्छा समाज बना लें, बस यही चीज मुझे कहनी थी. अच्छा, जस्ट एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टी? मतलब कोई भी जो है, इसके पहले क्वेश्चनरी राउंड चालू करूं मैं. इसके बीच में फर्स्ट आई वुड लाइक टू से आंचल जी, वन मोर गेस्ट विथ अस. आंचल जी, just introduce the Yamini ji also and say your about us.
Pranam Guruji, and wish everyone a very, very happy Women's Day. I was introduced to Guruji by Atnoda, and since that time he's become like a father figure, a guardian for me. And बहुत सारी बातें ना बड़ी बेसिक बातें होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, we just get disconnected from ourselves. हमें समझ नहीं आता, हमें जिंदगी में इतनी situations हो जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं. But people like Guruji come as light bearers and introduce us to people, and because of his energy and because of the thinking that we all have, we also keep connecting with like-minded people. So मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची लड़की से मिली, यामिनी से. She is a very short girl, but उसके जो काम है वो इतने बड़े बड़े हैं ना कि I was so impressed with her, because for me she was all about a lot of strength, a lot of grace, a lot of intelligence, fearlessness. और अपने लिए नहीं, मतलब लोग कोई भी किसी को भी जरूरत हो, कोविड टाइम हो या वैसे हो, this girl has done मतलब such fantastic things कि आज का जब सेशन हुआ है, I wanted to bring her and I wanted Yamini to talk about what she has been doing so far. So Yamini, are you there with us? She was here. Yeah, I saw her too. I saw her. That's why I told you. 5,500 बच्चों को एजुकेशन देकर अपना आप सालमबंद दे चुकी हैं यामिनी जी. मैंने भी देखा था शायद. I have just texted her. तो कोई connect, मेरा भी गुरुजी बार-बार connection was like. अभी आएंगी वो, जब तक हम एक और काम शुरू करते हैं. मैं आप पूरे समाज सदन को बोलता हूँ, anybody want to ask, either नमिता, either दिशा जी, तो दिशा जी का जीवन भी ग्लोरिया लगता है, लग्जरी होगी भाई, फिल्म एक्ट्रेस है, लेकिन इनके भी वहां तक पहुंचने में इनको कोई सहयोग, असहयोग, सपोर्ट और डिस्कम्फर्ट कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा होगा. तो एनीबडी वांट टू आस्क क्वेश्चन, एनीवन टू एनीबडी, फ्लोर इज योर्स. दिशा जी, ओपन योर वीडियो. दिशा जी, ओपन योर वीडियो. जी गुरुजी. जी बेटा, मेरा क्वेश्चन पहला तुझसे है कि मैंने तेरे अभी इस तक के ऐतिहासिक, मतलब ऐसा कहते हैं फिल्म लाइन में आना एक बहुत बड़ा सपना होता है, आज की तारीख में नहीं करूंगा. उस सपना को तुमने बराबर अपनी समस्त जिम्मेदारियों के साथ लेके पूरा करा. तो इसमें हाउ यू फील द मेन पार्ट इज सपोर्टिंग और डिस्करेजिंग. आपने शब्दों में कह तो दिया, अपने शब्दों में कह दिया कि कोई डिफरेंस आप विनीत और विनीता में, संजय और संजना में ना समझे, दोनों को एक दिखाव से देखे. लेकिन पर भी मेरे व्यक्तिगत जिज्ञासा थी जो आपसे पूछ रहा हूँ. मुझे लगता है मेरी जो जर्नी थी ना, मेरठ से लेकर मुंबई जाने की, छोटा सा शहर है मेरठ, उत्तर प्रदेश का, उससे मुंबई तक जाने की मेरी जो जर्नी थी, उसमें अगर कोई रुकावटें आई हैं ना, तो वो मेरी खुद की सोच की आई हैं. जब हम अंदर से वीक होते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते, तो चाहे हम ऑपोजिट जेंडर कह लें या सेम जेंडर कह लें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब हमारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना खुद पे विश्वास नहीं करते और दूसरे पे डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं. जैसे नमिता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि उनके पिताजी ने कहा था कि किसी पे डिपेंडेंट मत होना जब कोई तरस खाएगा आप पे, है ना. तो मुझे भी, मतलब मैं उस चीज को बहुत अंदर से रिलेट कर पाई कि जब शायद, क्योंकि हमें पता नहीं होता एक्टिंग में क्या करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, हम कहीं ना कहीं जब बाहर जाते हैं ना, तो हम विश्वास कर लेते हैं कि शायद ये मेरे को रास्ता दिखा देगा, या ये कुछ उम्मीद हो जाती है. तो वो जब उम्मीद डिपेंडेबिलिटी पे बदल जाती है, तब शायद कोई ना कोई आपका फायदा उठा सकता है. लेकिन जब आप खुद पे विश्वास करते हो कि मैं खुद का रास्ता ढूंढ लूंगी, चाहे आज ढूंढूं, चाहे 10 दिन बाद ढूंढूं, चाहे 10 महीने बाद ढूंढूं, लेकिन खुद पे विश्वास होता है और दूसरों की मदद पे आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो मुझे लगता है कि कोई आपका फायदा नहीं उठा पाता. Very good. How boldly she said कि if you are strong from inner side and you not come in the temptation of other someone else, because your first coach, your first well-wisher is yourself own. जी. आपसे बड़ा आपका शुभचिंतक कोई नहीं होता. और इन्हीं लाइनों को लेकर दिशा जी ने अपनी यात्रा चालू कर दी और आज एक समाज में महिला के कार्य को भी लेकर चल रही है और एक अपनी हॉबीज, एक अदाकारा के रोल में पूरी पड़ रही है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर. एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फ्लोर इज योर्स.
दिशा जी भी हैं, नमिता जी भी हैं, संजना जी भी हैं और वो भी हैं, सब आप जो चाहे पूछ सकता है। कंचन जी दुबई, नैरोबी जी, रूपा जी नैरोबी, प्रतिभा जी, कोई भी, एनीबडी। ओके, नाउ आई गिव द फ्लोर टू द आंचल जी। आंचल जी ने कुछ दिन पहले ही हमको ज्वाइन किया, तो मैं आई थिंक शी इज द न्यूएस्ट, तो आई वुड लाइक टू आस्क हर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको रेगुलर सेशन में, मैं अपनी तारीफ नहीं चाहूंगा, मैं हूं तो ये मेरे पूरे परिवार के कारण जो आप लोगों के बीच मौजूद है, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको बार बार इस सेशन में रोजाना मुझे फोन लगा के बोलते थे गुरुजी आज सेशन नहीं किया, आने को मजबूर किया? एक्चुअली इन सेशंस में जितनी बार मैं आती हूँ ना, आई एक्चुअली फील कि हम लोगों को सबको बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वी आर ऑल एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट कि ओके आदमी ये अच्छा कर सकते हैं, औरतें ये अच्छी कर सकती है। यू नो, व्हेन वी ऑल सिट टुगेदर विद सच नाइस पॉजिटिव एनर्जी, इट रियली रियली हेल्प्स यू इन मोर वेज देन वन। मेरे केस में ये जो गिविंग का चीज सिखाया है ना गुरुजी ने, कि अपने बारे में मत सोचो, ये सोचो तुम किसी के लिए क्या कर सकते हो। दैट वन थिंग probably was always there with me as a child, बड़े भी होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम अपने चीजों में हमें लगता है यार मेरा कैसे फायदा होगा, मैं इससे बात करूंगी तो क्या कनेक्ट निकलेगा, फिर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो वो सब चीजें दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी हैं गुरुजी के यू नो सेशंस में आने के बाद। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय हिज ब्लेसिंग्स सब अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, फिर भी सब अच्छा हो जाता है। एंड देन उन्होंने बताया था ना कृपा, कि करो और फिर पाओ, तो मैं उसको आई एम लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, कि मैं किसी के लिए भी जो भी कर सकती हूँ अपने मीन्स में, थोड़ा बहुत जो भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ, और उससे बहुत मैनिफोल्ड वापस आता है मेरे पास में। एंड इसीलिए मैं बार बार गुरुजी के सेशन में वापस आती हूँ। मैं नई आई थी, मुझे पता नहीं था कि संडे को सेशन नहीं होता। मैंने संडे को भी टेक्स्ट कर दिया उनको कि गुरुजी आज सेशन नहीं है, वो बोलते कि संडे को सेशन नहीं होता है। So that is my story with Guruji. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर शनिवार 8:30 से 9:30 एवरी डे, नॉर्मली एवरी डे, कल से हम जो कि बिकॉज आई एम गोइंग इन द साइलेंस, तो देन नेक्स्ट सैटरडे से हर सैटरडे होगा टिल देन, मेरे फर्दर नोटिस की डेली रेगुलर की बजाय एवरी सैटरडे हम करने जा रहे हैं, करते हैं। वो बात करेंगे, आपकी बात आपसे करते हैं, माध्यम बदल जाता है। माय मोटिव टोटल टू कनेक्ट योरसेल्फ, आपको आपसे मिलाना। लगता है यामिनी जी हमारे बीच में आ गई हैं, उनके बाद मैं आपको जया जी को बोलूंगा वोट ऑफ थैंक्स का। हाँ यामिनी जी, आपका स्वागत है। आपके बारे में आंचल जी ने बता दिया, जस्ट वी वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। 5,500 बच्चों को शिक्षा देने वाली आज वह महिला हमारे बीच में है। कहाँ गई क्या, हैंग अप हो गई क्या वापस? एनीवे, सो मैं जया जी को बोलूंगा कि जया जी प्लीज ऑफर द वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स and try to little bit explain in English also. प्रणाम गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? Yes. श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणाम गुरुजी अगेन, सबको मेरी नमस्ते। To all the wonderful women out here, happy International Women's Day। ये बस एक दिन है हमें सेलिब्रेट करने के लिए, हर दिन हमारी सेलिब्रेशन होती है। And special thanks to all of our guests, honorable guests who have joined us, और उनके जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, और उनको जो मेल सपोर्ट मिले उन सब के बारे में बात किया। उन सबको थैंक यू वेरी मच। बिगिनिंग विद गुरुजी, जो इस तरह की प्रोग्राम्स की आयोजन करते हैं हर साल, आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को और उनको सेलिब्रेट और ऑनर करते हैं। बिगिनिंग माय फर्स्ट थैंक्स टू गुरुजी, obviously to all our guests of honor, beginning with Namita Dubey ji, amazing talk about your growth, जहां आप अपने weakness को positivity में बदला, you ascertained it, you're a role model for all of us,
एंड गुरुजी ने जो आपके जर्नी को एक्सप्लेन किया वो देखे जब वो कॉलेज में थे आपके ब्रदर के साथ, और आपकी जर्नी जब आप कैसे थे और अब इधर तक आए हैं, और यू हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइक हाउ दिशा जी मेंशन, आई ऑल्सो प्रणाम करती हूँ अपने पिता को, योर फादर, जो वो वैल्यू इंस्टिल किया आप में, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स दैट मे बी शॉर्ट लिव्ड, अपने आप में डिपेंडेंट रहो एंड यू शुड बी द वन ऑफरिंग द हेल्प, किसी से मदद नहीं लेना है बट मदद ऑफर करना है, heavily ingrained in my brain too, and it really touched my heart. Hats off to your father for instilling that value in you. And जो जर्नी आपकी रही है और आपने जो ये संस्थान शुरू किया है तेजस्वी तुली एंड ऑफरिंग एजुकेशन टू ऑल, और एक और बात जो बहुत स्ट्राइक हुई मुझे इज व्हाई ओनली बिहाइंड एजुकेशन, आपने कहा संस्कार दो बच्चों को, योग दो, पर्यावरण की सिखाओ दो, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट। जब आप ये सब दे रहे हैं ऑटोमेटिकली एजुकेशन आ जाती है उन पे, राइट? इट्स नॉट लिमिटेड टू द करिकुलम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द एम्फोसिस ऑन दैट. Thank you once again, Namita Dubey ji, and also highlighting importance of the male gender in your life. Your father, जब आपकी cancer diagnosed हुई थी, आपकी brother. So thanks to all of them. We are celebrating you, but they are all your support, supporting you from the back. So Namita ji, धन्यवाद again. And moving over to हमारी ट्रांसजेंडर संजना राजपूत सिंह जी, आपको हम पहले भी एक दो सेशंस में आप हमारे गेस्ट बन चुके हैं, जो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया हमारे अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पे। एंड हैट्स ऑफ, जो आपने बस अपने समाज को उधर तक ही नहीं सीमित रखा, बट उनके जस्टिस के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपने फाइट किया, बिगिनिंग फ्रॉम आइडेंटिटी, आधार कार्ड, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि समाज में गुरुजी जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी आप सबको प्रमोट करते हैं। And on the same note, we also have people जो आपको सबड्यू करते हैं. So I applaud all the men जो आपकी लाइफ में हैं और आपको सपोर्ट करके आगे हैं, आ रहे हैं, और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की ओर से मैं आपकी उन्नति और तरगति को और प्रोग्रेसिंग भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, और आप मोर राइट्स यू ब्रिंग टू द ट्रांसजेंडर community. And thank you गुरुजी, आपने इस जो 2022 का थीम रहा है equality in gender for sustenance of future, उनको भी आपने recognize किया. Thank you again. And moving over to our other guest, Vesna Anastasia ji, you stole all of our heart with that Shiva bhajan and Hare Krishna bhajan. It's so cute. हम सब दोहराते हैं, chat करते हैं, but आप chat करते हैं, right? It's adorability to its core. So thank you so much. And आपने बहुत अच्छा explain किया. You explained very well that femininity is not just how we dress up, right? It's not how I make up, how I dress up, how I appear. हमारे में जो femininity है, जो कृष्ण भगवान ने describe किया, उस virtues को बाहर लाना, वो is femininity. And in each one of us, हम सब में पुरुष भी हैं और महिला भी है. Thank you so much for explaining about it, and your beautiful bhajan. As always, we relish it. Now, moving over to Disha, our silver screen actress, Disha Sachdev ji. आपने भी बहुत अच्छा explain किया equality in energy, शिव और शक्ति फॉर्म, जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं, शिव और शक्ति फॉर्म, और it's equal. It's only thing is जब हम किस शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं, द होल यूनिवर्स के सस्टेनेंस के लिए दोनों शक्ति की जरूरत है, और आप एक रीकी हीलर और एनर्जी को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके ऊपर आपने एम्फसाइज किया, एंड यू वेरी वेल स्टेटेड इट. एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग योर जर्नी फ्रॉम मीरठ, अ स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश, how you came into Bombay on the silver screen with your own strength and potential, and applauding the support of everybody in your life. Last but not least, Yamini Sharma ji, we didn't get to hear, तो आपसे हम सुन नहीं पाए, but आंचल जी ने explain किया, आप इतने सारे support दिए during COVID time, और गुरुजी बार बार दोहराए कि आप 5,500 kids को teach करते हैं. Although we did not get to hear you, I salute you on behalf of the entire Divine Astro Healing family for your services. Last but not least, our own DAH members, commencing from Ragini ji, जो she kick-started the event with a heart-melting bhajan, सबका मंगल हो, जो गुरुजी ने अभी बताया है, और हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली का मोटो भी यही है,
हमेशा वो यही सिखाते हैं, अपने बॉदरेशंस, अपने वरीज के साथ दूसरों का तुम क्या हेल्प कर सकते हो, दूसरों को आप क्या व्हाट कैन यू थिंक फॉर देम, हाउ यू कैन हेल्प। सर किसी का बॉदरेशंस एंड वरीज खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा, उसके साथ आप कैसे हेल्प कर सकते हो सबको, वो मोटो रहती है। हम हर दिन आते हैं, प्रे ब्लेस हील, एवरीबडी प्रे ब्लेस हील, कॉन्जिक्यूटिवली। तो वो मोटो रागिनी जी ने बहुत अच्छे अपने आवाज से उसको दर्शाया। And then our youngest participant, Titir ji, very well she summarized what divine astro healing concept is. First, recognize the potential in yourself. हम में ही है. You can carve your fortune by your own, strengths जो गुरुजी instill कर रहे हैं इस process के द्वारा. And if you need help, after that you reach out for help. But सब हम में है, उसको तुम tap करो. Thank you, Ragini ji, for the prayer, and thank you, Titir ji, for explaining on divine astro healing. I hope I have not forgotten anybody. And Achal ji, for your experiences, you summed it up beautifully. कुछ मत करो, तुम अपना काम करो, फिर तुम पाओ। जैसे उन्होंने कहा, राइट, हम इस सेशंस में आते हैं, गुरुजी की निगाह में हम हैं, उनकी ग्रेस हम पर हमेशा है, सब हो रहे हैं, चीजें सब अपने आप हो रहे हैं, इसलिए वी आर कमिंग। Hurdles are part of the life, but we are in a safe boat under his grace. We are in a safe boat. He is sailing us to, anchor us. So thank you, Achal ji. And last but not least, Guruji, अपने आप independently इतने सारे कर रहे हैं, सब events को recognize कर रहे हैं, people को recognize कर रहे हैं, उनको उनके साथ उनकी time facilitate कर रहे हैं और honor कर रहे हैं. And this event, he coordinated it beautifully, single-handedly. And to all our divine astro healing participants who are a part of this, where we come together, हर दिन हम आते हैं सबके लिए प्रे करने के लिए. अभी हमारा प्रेयर्स जारी है रशिया यूक्रेन वॉर एंड होने के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए. हर इवेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रे कर रहे हैं. सबको थैंक यू वंस अगेन. हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे. हर दिन विमेंस डे होती है, बट इस बार इस सेशन में बस 4-5 लोगों को हमने रिकॉग्नाइज किया है. बहुत सारे विमेन हैं जो रिकॉग्नाइजेबल है, हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, बट सबको थैंक्स. एंड ऑल द men who are supporting them, as well as the cross gender and others, thank you all. सबका मंगल हो. Thank you. Now, and finally, I thank you, Jaya, so beautifully. What of things you explain and make a proper kitchen of the whole program. But in the last, I would like to say 3-4 minutes for a small meditation and prayer for the Russia-Ukraine war. Every country, maybe possible the different land, different country, but they are human beings. Overall, the loss of humanity is there. So since last Shivratri, we are going to pray all together for a few seconds in the last. Just we go for our small meditation. Keep your both hand like this. अपने हाथ दोनों से करें. Stretch your hand. Feel some force is pulling you up. Some force is pulling you up. इसी कल्पना करें कोई हाथ शक्ति ऊपर खींच रही है. Release your hand. Bring your attention on your navel area. And chant Om. Take a long deep breath for Om chanting. Om. Watch your 5-element body. Any physical pain, any health issue you are having, just become aware of the particular that part. जहां भी आपके शरीर में कोई दर्द हो, कोई व्याधि हो, अपना मन रूपी ध्यान वहां पर लेकर जाएं.
जहां भी कोई व्याधि हो, पीड़ा हो, वहां पर ध्यान ले जाए and pray, heal and bless this 5 element temporary body. Become aware of little upper side on your heart chakra. Is the place of Lord Vishnu. Keeping attention on your heart chakra. Chant Namah. Take a long deep breath with the help of chest muscles. रिश्तों का दर्द, रिश्तों का अभाव, कोई भी आपके साथ हो, रिश्तों का स्वास्थ्य जो एक चिंता का कारक है. Think about all your relation pain. Now become aware of your third eye, आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच का स्थान, center point of your eyebrow, and chant Shivaya. Take a long deep breath for our Shivaya chanting. Shiva. Now think about you, what you want from coming life. क्या चाहते हैं अपने इस अस्थाई शरीर से, आने वाले जीवन से. थिंक बिग, जो भी आप चाहते हैं बड़े से बड़ा सोचें. थिंक बिग. Just pray, heal, and bless to all the participants, those are part of this group. Whatever botheration, worries, health issue, relationship issue, any desire, let's pray for each other. Now collectively, all become one. Collectively, energy go toward the war is running between Russia and Ukraine. Let's pray to both countries. Those are sufferers. They get a relief and stop the humanity killing war. जल्द ही ये वार समाप्त हो और मानवता, मानव की हत्या बंद हो. कोई भी देश का हो, उस देश का वही मानव के 2 हाथ 2 पैर. Let's pray, heal, and bless collectively for the global peace. Om Trayambakam Yajamahe
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मुक्तोरमुक्षीयमामृता। Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रख लें. And give the blessing to this 5 element body under your hand. जितनी शक्तियां हैं, woman power, man power, all power become Shiva Shakti. Let's bless this 5 element body. You are very blessed. Hug yourself. अपने आप को स्नेह करें. तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का भाव आए, अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर पानी का ग्लास आपके पास है, तो पानी का ग्लास भरकर राइट हैंड लें, एंड कवर बाय राइट हैंड, कोई भी हाथ से कवर करें पानी के ग्लास को, and drink the water. Thank you very much everybody again to become a part of this session. Every participant, some speak, some not speak. उन सबको मेरे दिल से बहुत blessings. Surrender your all botheration and worries to me. Just keep your smile with you. Thank you very much.